Hello, dear bhaitis and bhantis. So, তোমালোকৰ ডিমান্ড আছিল, তোমালোকে কমেন্ট সেকশনত লিখি আছিলা যে এইমছ নাৰ্ছিঙৰ কাৰণেও স্যাৰ আমাক গাইড কৰি দিয়ক, এছএছচি ওএছএছচি ডাবল যিমান আপুনি সময় পাইছে সেই হিচাপে যিখিনি কন্টেন্ট দিছে আমাৰ বহুত হেল্প হৈছে, মোৰ বহুত ভাল লাগিছে শুনি। এটা এইমছ নাৰ্ছিঙৰ কাৰণে আমি কি কৰিব পাৰো, তো মই এইমছৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনছৰ পৰা উঠাই আনিছো এণ্ড যিখিনি কুৱেশ্যনছ ইয়াত আছে অলপ এইমছৰ এক্সামটো কম্পেয়াৰ টু এছএছচি ওএছএছচি ডাবল টাফাৰ সাইড হয় লিটল বিট, বাট questions যেটা তুমি previous year questions বিলাক দেখিবা দেন তুমি ৰিয়েলাইজ কৰিবা কি more or less NCERT oriented হয়, যোনটো ষ্টাইলত মই পঢ়াও তেনেকা টাইপৰ কোৱেশ্চনে হয় এণ্ড মই যেতিয়া এক্সপ্লেনেশ্যন কৰিম সেইটো ভালকে শুনিবা এণ্ড এক্সপ্লেনেশ্যনত যেতিয়া মই কম কি এইটো ৰিলেটেড টপিক NCERT অমুক পেজত আছে তে সেই পেজটো ওলাই চাই ল'বা। আজি বায়ৰ কাৰণে মই লৈ আহিছো কেমিষ্ট্ৰিৰো টপ 30 কুৱেশ্যনছ থাকিব, ফিজিক্সৰো টপ 30 কুৱেশ্যনছ থাকিব and surprisingly আৰু এটা বস্তু মই এক্সট্ৰাকে দিম, হেতু মই এতিয়া নকওঁ, মই পিছত গৈ ৰিভিল কৰিম তোমালোকক, ঠিক আছে? সো লেটস স্টাৰ্ট উইথ দ্য কুৱেশ্যনছ গাইজ। Okay, so the first question goes like, which gas was absent in Miller's experiment? So Miller যেতিয়া experiment কৰিছিল, he tried to create the early earth like environment and early earth like environment তোমার reducing nature আছিল atmosphere, তার মানে তোমার অক্সিজেন নাছিল। ওকে, সো মিলার এক্সপেরিমেন্ট তো বাকি কিটা গ্যাসেস H2 NH3 CH4 ডায়াগ্রাম তো NCERT চালে ইভলিউশন চ্যাপ্টার তোমালোকে পাই যাবা বাকি কিটা গ্যাস আছিল। Which disease is caused by a virus? Very easy. Common cold is caused by rhinovirus. Every year তোমালোকৰ হয় এই বেমাৰটো, হয় না? So this will be your answer. বাকি these are bacterial disease. Typhoid is caused by Salmonella typhi. Malaria is caused, malaria is a protozoal disease. Malaria is a protozoal disease. Protozoa cause করে Plasmodium. And pneumonia is again a bacterial disease caused by Streptococcus pneumoniae. So your answer will be option number A. Third, which of the following is a autoimmune disease? Autoimmune disease জানা হিউম্যান হেলথ এন্ড ডিজিজত আছে, যেতিয়া তোমার বডির ইমিউন সিস্টেমে তোমার বডি के अटैक करा स्टार्ट कर दिए, जिसका इन चारों में से जो टिपिकल एग्जांपल अल्जाइमर तो हैज टू डू विद द रेशियो ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, सिस्टिक फाइब्रोसिस, देन सिकल सेल एनीमिया, these are genetic disorders, and rheumatoid arthritis among the four option is a autoimmune disease. Okay, rheumatoid arthritis এটো নিটৰো প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চন হয় আৰু এইমছৰ নাৰ্ছিংতো এই প্ৰশ্নটো খুদিছে। ফাৰ্স্ট এন্টিবায়োটিক ডিসকভাৰ কৰিছিল Alexander Fleming and it was a serendipitous discovery by chance using the fungus Penicillium notatum. Okay, इसलिए एंटीबायोटिक का नाम है पेनिसिलिन, also known as wonder drug, used in World War by the American soldiers. And later बैक्टीरिया का जो भाई बंधु है उससे भी एंटीबायोटिक्स निकाला गया, बट यहाँ पे बोला फर्स्ट एंटीबायोटिक के बारे में, सो मेरा आंसर फंगस होगा। कौन सा फंगस है? पेनिसिलियम नोटेटम। कौन साइंटिस्ट? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट, विच हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय ओवरी? ओवरी इनमें से कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है? तो देखो भाई, जब भी ये सब देखोगे ना H ये प्लेसेंटल हार्मोन है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, प्रेगनेंसी टेस्ट में यही चेक किया जाता है। HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, अगेन समथिंग टू डू विद प्लेसेंटा। रिलैक्सिन, लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी तुम्हार रिलैक्सिन हार्मोन टू ओवरी रिलीज करे एंड ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शन करे, बट ऑक्सीटोसिन इज रिलीज फ्रॉम द posterior pituitary. Oxytocin is the hormone which is produced by the neurosecretory cells of hypothalamus. Hypothalamus এ দুটা হরমোন অক্সিটোসিন আৰু এন্টি ডায়ুরেটিক হরমোন ADH বা ভেজোপ্রেসিন, এই দুটা হরমোনক বনাই পেলে posterior pituitary জমা কৰি দিয়ে এন্ড posterior pituitary এটো স্টোর কৰি ৰাখে আৰু পিছত দৰকাৰ মতে ওলাই যেনেকা ডিউৰিং দ্য লেবাৰ অক্সিটোসিন টো ওলাব। ওভেৰিয়ান বনাই এটো हाइपोथैलेमस बनाए और पिट्यूटरी स्टोर्ड है, एगिटा प्लेसेंटा बनाए। प्लेसेंटा रिलेटेड टू क्वेश्चन खुदिब पारे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेम्पोररी एंडोक्राइन ग्लैंड? योर आंसर विल बी प्लेसेंटा, बिकॉज प्लेसेंटा ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीमेलर बॉडी पाया जाए, अदरवाइज पाया ना जाए।
কার্বন ডাইঅক্সাইড অ্যাকসেপ্টার ইন C4 প্লান্ট সো C4 প্লান্টছত আমি যোনটো ফার্স্ট प्रोडक्ट হয় হেতু 4 कार्बन है कारण আমি C4 प्लांट्स বুলি কও दैट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बट उसको एक्सेप्ट जो करता है वो है RUBP राइबोलोज बिसफॉस्फेट ओके दिस इज फ्रॉम क्लास वेट सॉरी RUBP नहीं PEP कहाँ है PEP इज द आंसर PEP CO2 acceptor in C4 plants is basically PEP okay phosphoenol pyruvate এটো তোমার ক্লাস 11 और যোনটো তোমার হেৰি আছে চ্যাপ্টাৰটোৰ নাম কি ফটোসিনথেসিস রাইট তাত C3 C4 প্লান্টছৰ বিষয়ে মেনশন আছে ফার্স্ট প্রোডাক্ট এই মাত্র কৈছিলো 4 কার্বন প্রোডাক্ট হয় যার নাম হল অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিড ঠিক আছে সেইকাৰণে নাম প্লান্টস ব্লক C4 প্লান্টস বুলি কও C4 plants is better than C3 plants because they do not have that wasteful process known as photorespiration. Photorespiration to na thakar karone it is a better one, okay? Comparatively high yield hai. ऐसी काम नहीं कर रहे ठीक है छोटा रहने दो. Which ion is known to suppress sperm motility? Again, it's a direct question, and if you have studied the chapter reproductive health. IUDs বুলি আছিল ইন্ট্ৰাইউটেৰাইন ডিভাইস এন্ড তাত এটা এক্সাম্পল আছে কপাৰ টি আৰু মাল্টিলোড বহুত গাল আছে ঠিক আছে দুই তিনটা এক্সাম্পল তে এনসিআরটি তে দিয়া আছে সো দিস আর কপার কন্টেইনিং ইন্ট্ৰাইউটেৰাইন ডিভাইসেস কপারে কি করে স্পার্মৰ স্পিড টু মোটিলিটি টু কমাই দিয়ে তো ইয়াৰ যোনটো কোৱেশ্চনৰ আনসার আমাৰ এ হৈ যাব ডাইৰেক্টলি एंटागोनिस्ट ऑफ जिबरेलिन हार्मोन ओके सो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंटागोनिस्ट मतलब उल्टा काम करना ये प्रोमोटर के कैटेगरी में आता है तो हमें इनहिबिटर के कैटेगरी का हार्मोन ढूंढना है तो इनहिबिटर में ये दोनों होता है लेकिन एब्सिसिक एसिड इज अ बिगर इनहिबिटर ओके सो आई विल गो विथ एब्सिसिक एसिड इथाइलिन हैज गॉट डुअल रोल इट हैज इनहिबिटरी फंक्शन एज वेल एज प्रोमोटिंग फंक्शंस बट एब्सिसिक एसिड আমি টিক কৰিম ইয়াত এটো যদি তুমি মনত ৰাখিব লাগে বেসিক্যালি যদি তুমি এটো কথা আনসারটো যদি মনত ৰাখিব লাগে তে মই ইমানখিনিয়ে কম জিবেৰেলিন শুনিলে উই talk about the archangel Jibrail or Gabriel so jette amar mathat angelor kotha ami bhal kotha bhabo positive kotha bhabo aru jette ami acid buli pohute acid e kiba na kiba harm kore tomar ga tu acid pori gale harm hoy jabo to etu positively loba etu negatively loba promoter inhibitor question number 10 protonema is a characteristic so protonema to ami kot pao protonema is present just before the leafy stage in case of moss to moss or example ami tick koribo lagibo yat পলিট্রাইকাম এটু মসৰ এক্সাম্পল ঠিক আছে বাকি এলগি সেলগিৰ এক্সাম্পল দিয়া ব্রায়োফাইটাৰ এক্সাম্পল দিয়া আছে তো আমাৰ আনসার মসৰ এক্সাম্পলটো হ'ব প্ৰোটোনিমা কোৱাৰ লগে লগে which family does housefly belong to तो housefly belong to which family याद रखना म्यूजिक दिया तो ये फैमिली हो जाएगा मस्कीडे पिक करा ओके फैमिली ऑर्डर इज डिप्टेरा दिस इज द ऑर्डर ओके इंसेक्टा आई फॉर इंसेक्टा एटो हो जाबो क्लास इंसेक्टा तुम्हार क्लास ओके और ए स्टैंड्स फॉर आर्थ्रोपोडा इज बेसिकली द फाइलम म्यूजिक दिया हाउस फ्लाई जो है मक्खी कान के सामने आके म्यूजिक देता है ना भिन 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 आवाज पे उठाके RNA without protein capsid is known as so guys when you look at a virus has got a protein capsid and the genetic material this is virus if you see only the RNA and no protein code this is viroid and if you see infectious protein particles but not the genetic material then it is prion আমার কোয়েশ্চনত কৈছে RNA without protein capsid নাই মানে এটোৰ কথা খুদি আছে that means your answer will be viroid বাকি lichen you know is a symbiotic relationship sex determination in human so bhai human ot ki hoy male heterogamity hoy to male ot tumar xy hobo aru female ot xx hobo to amar xy type is the answer okay baki ye xo zw ye insect और birds ये तुम देख लेना और ये जो हैप्लोडिप्लॉइड वाला बात लिखा है ये हाउस फ्लाई के लिए सॉरी हनी बी के लिए लिखा है हनी बी में क्या होता है जो तुम्हारा फीमेल होता है वो डिप्लॉइड होता है और जो मेल होता है वो हैप्लॉइड होता है मेल डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम पार्थेनोजेनेसिस नेक्स्ट व्हिच इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टोमेटल apparatus
स्टोमेटल एपैरेटस का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है? तो स्टोमेटल एपैरेटस में ऐसे गार्ड सेल्स होता है, बीच में ये स्टोमेटल पोर हो गया और साइड में हेल्पिंग सेल्स है जिसका नाम है सब्सिडरी सेल्स। ठीक है, तो गार्ड सेल होता है, सब्सिडरी सेल्स होता है, स्टोमेटल पोर होता है, क्यूटिकल नहीं होता। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्यूटिकल इज द आंसर। बुझी पाइसा? आराम से करिब पारिबा साइ थाका। Which of the following statement is correct about binomial nomenclature is incorrect? ভুল স্টেটমেন্ট আমি পিক কৰিব লাগিব ইয়াৰ পৰা। ठीक है सर, वी नीड द भूल स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट हमें इनमें से पिक करना है। पहला क्या बोलता है? जीनस इज रिटन विद अ कैपिटल लेटर, फर्स्ट कैपिटल लेटर, यस फर्स्ट लेटर तो मैं कैपिटल लिखूं, स्पीशीज टू स्मॉल लिखूं। द स्पीशीज एपिथेट इज रिटन इन स्मॉल लेटर्स, ये दोनों स्टेटमेंट तो सही है। फिर बोला है बोथ वर्ड्स आर सेपरेटली अंडरलाइन व्हेन हैंड रिटन, ये भी सही है। और व्हेन टाइप बोथ नेम्स आर इटैलिसाइज्ड, हम की बोली खुद से व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, गलत स्टेटमेंट हमें पिक करना है। बोथ वर्ड्स आर सेपरेटली अंडरलाइन, सही तो है, क्वेश्चन में कुछ उल्टा सीधा लग रहा है मेरे को। ये तो किबा मिस्टेक होगा क्वेश्चन टू। जीनस नेम स्टार्टेड ए कैपिटल लेटर, सही बात है। स्पीशीज एपिथेट इज रिटन इन स्मॉल लेटर्स, ये भी सही है। ठीक है, बोथ वर्ड्स आर सेपरेटली अंडरलाइन व्हेन, यस वी हैव टू सेपरेटली अंडरलाइन देम, दिस इज आल्सो करेक्ट। व्हेन टाइप दे आर इटैलिसाइज्ड, हाँ टाइपिंग में इटैलिसाइज्ड, समथिंग हैज टू डू किबा এটা টাইপিং ত ভুলে দিলো, মেমৰি বেসড হয় না পেপাৰটো, এটো কোৱেশ্চন অলপ স্কিপ মাৰি দিয়া। নেক্সট হলে আহো, Which of the following statement about Drosophila melanogaster, ओके ड्रोसोफिला के बारे में सवाल पूछा गया है। ठीक है, ड्रोसोफिला के बारे में हमें इनकरेक्ट पिक करना है। ठीक है, तो ड्रोसोफिला को पिक भी किया था मॉर्गन ने बिकॉज उसके कई सारे एडवांटेजेस थे। जैसे एक तो बोला इट हैज अ शॉर्ट 2 वीक लाइफ साइकिल, यस बहुत जल्दी जल्दी আমি স্টাডি কৰি লব পাৰো, গোটে লাইফ সাইকেলটো জন্মৰ পৰা মৃত্যু 2 সপ্তাহতে হৈ যায়। सेकंड कहते हैं ग्रोज इन कॉम्प्लेक्स रेयर मीडियम, ये गलत बात है, बहुत सिंपल मीडियम में तुम उसको ग्रो करवा सकते हो, इसलिए मॉर्गन साहब ने चूज किया था, इजी टू एक्सपेरिमेंट। थर्ड क्वेश्चन शोज क्लियर सेक्स डिफरेंशिएशन, यस जस्ट लाइक ह्यूमन इट हैज गॉट XX XY टाइप ओनली एंड इट हैज गॉट अ क्लियर सेक्स डिफरेंशिएशन। तुम्हें फीमेल टू साले देखाय पाबा अलप साइजत डांगर सांगर হয়, एनसीईआरटी डायग्रामत দেখা পায়ো তুমি গম পাই যাবা কোনটো মেল হয় কোনটো ফিমেল হয়। और फोर्थ कैसे सिंगल मेटिंग प्रोड्यूस लार्ज पॉपुलेशन, यस तार माने আমি स्टडी टू बहुत elaborately करिब पारो। सो आवर आंसर विल बी इनकरेक्ट स्टेटमेंट विल बी बी बिकॉज यू कैन ग्रो इट इन अ वेरी सिंपल मीडियम। অল্টারনেট ফাইলোটেক্সি, ভাই এটো एग्जांपल মরফোলজিত আছে, মরফোলজিত এবিলাক एग्जांपल আছে, তোমালোকে এবিলাক চাই যাবা হা। ফাইলোটেক্সিৰ ডিফারেন্ট টাইপস, ওকে জানা ন, সেম লেভেলত হলে অল্টারনেট হলে আর এটা গুচ্ছা বনাই ললে হোল্ড, তো এই ফাইলোটেক্সিস বিলাকৰ एग्जांपल চাই লবা। আমাক ইয়াত অল্টারনেট খুদিছে, মোৰটো মনত আছে ভাই কেলোট্ৰপিস, আমি তো পঢ়াই থাকো ন। এটা তোমাৰ কাম কি হ'ব, সব মই স্পুন ফিট কৰি দিলে তো নহব। এক্সামৰ আগত আমি কি কৰিবা, তোমালোকে বায়োটো ভালকে পঢ়ি চাই, তো এনসিইআরটি যিকেইটা एग्जांपल्स দিয়া আছে মৰফোলজি চেপ্টাৰত, এনসিইআরটিৰ एग्जांपल्स অনলি ভালকে চাই যাবা। एब्सेंट इन फीमेल फ्रॉग, सो फीमेल फ्रॉग और मेल फ्रॉग में हमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब मेल और फीमेल में तुम डिस्टिंग्विश कर सकते हो कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है उससे देखो, ट्रंक तो मेन बॉडी पार्ट हो गया, मेल फीमेल दोनों में ही है। ये जो कॉपुलेटरी पैड है जो इंटरकोर्स में मदद करता है, कॉपुलेशन में मदद करता है, ये मेल में होता है, मेल के फोरलिम्स में होगा, फीमेल के ऊपर वो चढ़ जाएगा पीछे से और कॉपुलेटरी पैड से ऐसे पकड़ लेगा फीमेल को, ठीक है। और साइज मेल का फीमेल के कंपैरिजन में छोटा होता है। वेब फिट दोनों में ही पाया जाएगा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी दोनों में ही पाया जाएगा। तो हमें जो फीमेल फ्रॉग में नहीं मिलता उसके बारे में बताना था, तो कॉपुलेटरी पैड इज द आंसर। नेक्स्ट खुदिस है कोनटो स्टेटमेंट मोनेरा किंगडমৰ বিষয়ে करेक्ट নহয়, মানে व्हिच इज इनकरेक्ट अबाउट मोनेरा। फर्स्ट इज ऑल बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉफ, ये गलत लग रहा है मेरे को। मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉफ, ऑल कले भूले जाबो, गुटेकिटा हेटेरोट्रॉफिक নহয়, কিছুমান ফটোসিনথেসিসও কৰে ব্যাকটেরিয়ায়, ঠিক আছে। বহুত ব্যাকটেরিয়া সিম্বায়োটিক এসোসিয়েশনও কৰে, বহুত ব্যাকটেরিয়া প্যারাসাইটিক নেচাৰৰো হয়, ঠিক আছে। এইবিলাক বাৰু হেটেৰোট্ৰফিত আহি যায়। হেটেৰোট্ৰফি ইজ আ বিগাৰ টপিক অল টুগেদাৰ, বাট
NCERT clearly says majority of the bacteria are heterotroph. There are some autotrophic bacteria also, like purple sulfur bacteria, green sulfur bacteria. So this should be my answer, but let's look at the other options as well. Cyanobacteria are photosynthetic, yes, blue-green algae. Anabina is it likha nahi, so I type korana because it is memory based hai na, whatever. Methanogen is living in the harsh habitat, हाँ, living LI, ठीक है. तो थोड़ा टाइपिंग साइपिंग भी गलत है, ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो मैंने नहीं बनाया, नहीं उठाया है मैंने कहीं से. तो आंसर विल बी ए. এইটো ডায়াগ্ৰাম বেস কোৱেশ্চন এটা দিছিল, এতিয়া ইহঁতৰ মনত নাই কোনটো লেবেলিং কৰিব দিছিল, বাট এইটো এনসিইআৰটিৰ মৰফলজি ৰুটৰ ডায়াগ্ৰাম হয়, চাই যাবা তোমালোকে. যোনটো লাষ্ট পার্ট है ना, এইটো পার্ট তার যোনটো কভারিংটো থাকে এইটো रूट कैप বুলি কওঁ, प्रोटेक्शনৰ কাম থাকে মেইনলি. एंड यहाँ पे जो सेल्स है कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं, दैट इज व्हाट इज द रीजन ऑफ मेरिस्टिमेशन, माने मेरिस्टिमेटिक एक्टिविटी. देन इज द रीजन ऑफ इलॉन्गेशन, और एटू हल रीजन ऑफ मैच्योरेशन. यार परमानेंट सेल्स থাকিব मोस्टली जोने डिवाइड नकरे. एंड एटू पार्टिकुलर रीजन ऑफ रूट हेयर পোৱা যায়, रूट हेयर इज फाउंड इन द रीजन ऑफ मैच्योरेशन. सो यार মাজতে কোনবা এটা লেভেলিং কৰিব দিছিল এক্সামত, স্টুডেন্টে এটু কৈছে আহি পেলে, তো হেটুৰ বেসতে কোৱেশ্চনটো এইবিলাক অল মেমৰি বেসড হয়. 21 ले आहा, which of the following statement regarding pollen grain is incorrect. गलत स्टेटमेंट चूज करना है, ठीक है. वेजिटेटिव सेल इज बिगर एंड जेनरेटिव सेल इज स्मॉलर. यस, वेजिटेटिव सेल बड़ा होता है और उसमें जेनरेटिव सेल फ्लोट करता है, ये तो सही स्टेटमेंट है. द आउटर लेयर ऑफ pollen grain is called exine. आउटर लेयर का मी exine बोली कहो, इनर लेयर ऑफ intine बोली कहो. Outer layer is made up of a very resistant organic substance known as sporopollenin. So this is also a correct statement. Next is that pollen grain lose their viability immediately after release from the anther. तो ये स्टेटमेंट सही भी और गलत भी है. किसी किसी स्पीशीज में इमीडिएटली खत्म हो जाता है और किसी किसी स्टेटमेंट स्पीशीज में वो महीनों तक इनफैक्ट वायबल रह सकता है. ओके, सो लेट मी होल्ड दिस ऑप्शन. pollen grains are produced in the ovule of the flower. भाई pollen grains मेल गैमेटोफाइट है, तो फीमेल ऑर्गन में कैसे आएगा वो, ठीक है. तो ये डेफिनेटली इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आई विल गो विद डी. ओके, सी इज आल्सो इनकरेक्ट, बट माने सी इज लाइक 50% करेक्ट 50% इनकरेक्ट टाइप ऑफ स्टेटमेंट. सो बेस्ट ऑप्शन मोर हिसाबे ऑप्शन नंबर डी हबो, जोंटु मोर आंसर हबो, ठीक है. किछुमान क्षेत्रत आमी एनेका बेस्ट ऑप्शन चूज करिब लागे. बहुत कोचिंग इंस्टिट्यूट से नीटर कारणे कय बोनास दिबो, एडुकेशनत बोनास दिबो. एनटीए বা কোনো টেস্টিং এজেন্সিয়ে কেতিয়াও বোনাস নিদিয়ে, সিহঁতৰ হিচাপে কিবা এটা আনসার থাকে, বুঝি পাইছা. তো আমি বেস্ট চয়েস কৰিব লাগিব সদায়. Which type of DNA, डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई, which type of DNA is used in DNA फिंगरप्रिंटिंग. तो तुमने पढ़ा ही होगा अगर DNA फिंगरप्रिंटिंग, तो तुमको पता ही है सैटेलाइट DNA कितने है. सैटेलाइट DNA इज द आंसर. ओके, कोडिंग DNA, माइटोकॉन्ड्रियल DNA नहीं, सैटेलाइट DNA इज द आंसर. प्राइमरीली यूज्ड इन फिंगरप्रिंटिंग, छोटा छोटा होता है, माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट, ये सब. नेक्स्ट की खुदी से, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेपेटम. तो स्वा भाई टेपेटम बेसिकली टेपेटम जो है, जब तुम एंथर का वाल को देखोगे, सबसे बाहर एपिथेलियम होता है, उसके अंदर एंडोथेशियम होता है, और फिर 2-3 तुम्हारे मिडिल लेयर्स होंगे और एकदम अंदर टेपेटम होगा. जो मिडिल लेयर से वो खत्म हो जाता है, ये डेहिसेंस में मदद करता है जब फट के निकलना होगा पोलन ग्रेन को. और टेपेटम जो अंदर है वो मम्मी जैसा काम करता है, दे प्रोवाइड नॉरिशमेंट, खाना वाना देता है, ठीक है. तो दे प्रोवाइड नॉरिशमेंट टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन. मल्टीपल टाइम आस्क्ड क्वेश्चन इन डिफरेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस. यू आर बाउंड टू नो दिस आंसर. ओके, यू हैव नो अदर चॉइस. नेक्स्ट गाइस, which of the following fishes have 4 pairs of gills covered by operculum. ओपरकुलমৰ কথা কোৱা লগে লগে মাথাত আহিব লাগিব কাৰ কথা, ऑस्टिकथाइस. सो मछली जो होता है, पीसेस जो होता है, सुपर क्लास पीसेस, दे आर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस. वन इज द कॉन्ड्रिकथाइस, द कार्टिलेजिनास स्पीशीज, एंड अनदर इज ऑस्टिकथाइस. तो এটা কভার থাকে, গিল কভার, ঠিক আছে, যোনটো অপারকুলাম বুলি কওঁ, হেতু कार्टिलेजिनास स्पीशीजত তুমি নাপাবা, কিন্তু বনি ফিশেজত হেতু বস্তু থাকে. तो कार्टिलेजिनस फिश जो तुम्हारा समुद्र का जो मछली होता है, मोस्टली जो कॉन्ड्रिकथाइस कार्टिलेजिनस फिश के कैटेगरी में आता है, उनको कंटिन्यूअसली स्विम करते रहना पड़ेगा, क्योंकि ओपरकुलम का काम होता है बाउएंसी प्रोवाइड करना. वो नदियों के जो मछलियां है, जो बोनी फिशेस है, जिनको हम जनरली घरत आमार अসমत खाओ जनरली,
ঠিক আছে সেইবিলাক মাছৰ যোনটো কাইট থকা মাছ থাকে সেইবিলাক মাছতে অপাৰকুলামটো থাকে তে ইহঁতৰ কাৰণে বেলেন্সিং ধুনীয়াকে হৈ যায় তে ইহঁতে এটা ঠাইত অলপ সময় ৰখিলেও ৰখিব পাৰে কিন্তু যোনটো মেৰাইন ফিশেছ হয় কাৰ্টিজিনাছ ফিশেছ ইহঁতে কণ্টিনিউয়াছলি সুইম কৰি থাকিব লাগে তো ইয়াত আমি অস্টিকটাইজৰ এক্সাম্পল বিচাৰিম এৰা লেবিঅ ৰহু কাটলা মাগুৰ এইবিলাক আমি খোৱা মাছ হয় না ঘৰত তো বনাই খাওঁৱে বিহু সিহুটো খাওঁ नेक्स्ट which of the following statement is true regarding open vascular bundle open का मतलब होता है बेसिकली open for secondary growth ओके open माने एने का भाभी कि open for secondary growth मतलब उसमें वापस से ग्रोथ होगा गर्ट वाइज ग्रोथ बढ़ेगा they are present in dicot stem yes dicot और stem तो मोटा है ना है तो this is correct ऑप्शन बी का सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट नहीं यार सेकेंडरी ग्रोथ तो होता है दे आर फाउंड इन मोनोकॉट रूट में नहीं होता जाइलम एंड फ्लोएम आर नॉट सेपरेटेड बाय कैम्बियम होय बाय सेपरेटेड बाय कैम्बियम ठीक है तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे यहाँ आंसर हो गल दिस इज फ्रॉम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स ओपन वास्कुलर बंडल एंड सेकेंडरी ग्रोथ इज सीन इन ए मात्र कोडिलु है डाइकॉट स्टेम मोनोकॉट स्टेम नहीं होता उस रूट में तो होता ही नहीं है कॉलम ए कॉलम बी को हमें मैच करना है डिलीवरी ऑफ द बेबी का मैं की बोली कहूं पार्चुरेशन बोली कहूं embryo development in female body is gestation and introducing sperm into the female tract insemination अच्छा एटो याते ऑप्शन किटा मैच करिए कोई दिसे हां तो 1A 2B and 3C 1A 2B 3C और 4 तो यात लिखा है ना because probably the student forgot option number 4 is was memory based right but whatever গম পাইছো আমি কি কি আৰু খুদিব পাৰে মই তোমাক কৈয়ে দিও की इवेंट्स আছে ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्टिंग इज गैमेटोजेनेसिस गैमेट का बनना स्पर्म बनले स्पर्मेटोजेनेसिस ओवम एग बनना oogenesis उसके बाद स्पर्म और ओवम का मिलना इंसेमिनेशन वेयर द मेल विल इजैकुलेट इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल एंड दे विल मीट होৱাৰ পিছত যোনটো ফাৰ্স্ট সেল বনে ফাৰ্টিলাইজেশনৰ থ্ৰু দি ফাৰ্টিলাইজেশন হয় জাইগোট कीप्स ऑन डेवलपिंग इनटू डिफरेंट different cells like 1 to 2 cell 4 cell stage then comes morula blastula gastrula stages গৈ পেলে কি হয় ইউটেৰাছৰ ভিতৰত গৈ পেলে ইমপ্লান্ট হৈ যায় ফাৰ্টিলাইজেশন টু কোত হয় ফেলোপিয়ান টিউবৰ এম্পুলাত হয় তাত ফাৰ্টিলাইজেশন হোৱাৰ পিছত মুভ কৰি ইউটেৰাছত গৈ পেলে এন্ডোমেট্ৰিয়ামত ইমপ্লান্ট হৈ যায় ইমপ্লান্টেশন এন্ড দেন বাচ্চাটো 9 মাহৰ কাৰণে মাকৰ বডিৰ ভিতৰত ডেভেলপ হ'ব দ্যাট ইজ এটো জেষ্টেশন ओके एंड देन डिलीवरी हो जाबो जाक आमी को पार्चुरेशन तार पिছত माके बच्चाक 2 बছৰৰ কাৰণে गाखिर खुवाय जाक आमी को लैक्टेशन नेक्स्ट ये भी एक क्वेश्चन था इन्हीं में से ये तुम्हारा वो करने दिया था लेबलिंग करने दिया था कुछ या तो डेंड्राइट दिया होगा या एक्सॉन दिया होगा कोई एक दिया था मतलब ये डायग्राम से ठीक है तो ये क्लास 11 का नर्वस सिस्टम का डायग्राम है देख लेना why is the activity of juxtagomerular cells required so JG cells release something known as renin and there is a mechanism which goes known as the RAS mechanism renin angiotensin aldosterone system तो A2 थ्रू दी किया ब्लड प्रेशर टू रेगुलेट है हाँ तो टू इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल नो टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर एंड ब्लड वॉल्यूम यस ओके तसे अगर रासक कंट्रोल करे एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर जो तुम्हारा हार्ट से लेना देना है टू रीएब्सॉर्ब द यूरिया नहीं तो ऑप्शन नंबर बी आ गया डायरेक्ट क्वेश्चन था बाकी ऑप्शन देखने का जरूरत नहीं था ओके गाइस मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ बायोलॉजी सेगमेंट यहाँ पे बोला है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अभी बोला भाई रेनिन जो तुम्हारा सिक्रीशन हो रहा है किसके द्वारा हो रहा है रेनिन का सिक्रीशन रेनिन का सिक्रीशन किसके द्वारा हो रहा है अभी तो बोला रेनिन का सिक्रीशन जेजी सेल्स के द्वारा हो रहा है तो उसका काम क्या है उसका काम है ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करना ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना ठीक है तो इंक्रीज ब्लड प्रेशर इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम एक्चुअली भाई हमें कौन सा चूज करना चाहिए अब प्रेशर और वॉल्यूम यहाँ पे दोनों चूज करना पड़ेगा ठीक है अभी बोला इंक्रीज ब्लड प्रेशर एंड ब्लड ए एंड बी एटू हो जाब हमारा आंसर ठीक है सो এটা বস্তু স্টুডেন্ট কনফিউজ है মই ভাল লাগিছে কাৰণে তোমালোকক পঢ়াই কৈ দি আছো प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम जो हमें कहू पीवी इक्वल टू एनआरटी ये वाला चीज जो हम लोग पढ़ते हैं जब हम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देंगे दैट इज बेसिकली योर बॉयल्स लॉ तात আমি এই কথাটো থার্মোডাইনামিক্সত তে বহুতে ভাবে কি প্রেসারটো যদি আমি বঢ়াওতে ভলিউমটো কমিব লাগে দিস ইজ কারেক্ট ফর কেমিস্ট্রি
बट बायो में यहाँ पे जो हम लोग पढ़ते हैं ना, बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज होता है ये चीज। देखो अगर दो पाइप है, ऐसे ब्लड वेसल्स का दो पाइप है, यहाँ वॉल्यूम ज्यादा है और ब्लड भी तो ज्यादा जा पाएगा, ज्यादा फोर्स से जा पाएगा ना, जा पाएगा कि नहीं? और यहाँ पे छोटा है तो कम ब्लड जाएगा, कम वॉल्यूम कम प्रेशर। तो यहाँ पे ऐसा मत, ये वाला कॉन्सेप्ट मत लगा देना। बहुत लोग बोलते हैं सर प्रेशर बढ़ रहा है वॉल्यूम भी कैसे बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम कम होना चाहिए, ऐसा बात नहीं है, ठीक है? तो बायो में केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट मत घुसा देना पटक से, सबका अपना अपना लॉजिक है, सब सब्जेक्ट का अपना अपना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं केमिस्ट्री सेशन लेके आऊंगा, बताना वीडियो कैसा लगा, और वीडियोस चाहिए कि नहीं वो भी बताना, और उसके बाद हम लोग फिजिक्स का भी एक सेशन लेंगे, ठीक है? ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एम्स नर्सिंग। People who are studying for agriculture, they can also have a look at this video because their questions are at similar levels, okay? NEET UG वालों के लिए मैं अलग वीडियो दूंगा।